अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सोसाइटी में, माशरे में रहते हैं, तो इस माशरे में बातचीत के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन के बगैर जो है हम अपना पैगाम, अपनी बात जो है सामने वाले के, सुनने वाले के सामने नहीं रख सकते। और इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हम अक्सर औकात माशरे में सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, अपनी एक स्किल को आगे तक लेके जा सकते हैं। अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं, या आम शहरी की हैसियत से अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं ताकि आप अपनी गुफ्तगू से अगले को कायल कर सकें। तो जी गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो हम डिफरेंट जो है स्किल से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। वो क्या क्या है? अगर आप एक नजरियाती नज़र से ना देखें तो कॉमन वेज में कुछ जो है सेंसेस हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो क्या हैं? तो सबसे पहले जी हेयरिंग है, जो हर पर्सन के पास एक एबिलिटी है जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। उसके बाद सीइंग है, देखना, स्मेल करना, किसी भी चीज़ को सूंघना, टेस्ट करना, उसका जायका चेक करना, टच करना यानी कि छूना। तो ये जी 5 स्किल्स हैं जो हर एक इंसान के पास हैं। इनका डेली लाइफ में क्या रोल है या इनसे क्या क्या अचीवमेंट्स आप अचीव कर सकते हैं। Communication skills. Communication skills is the ability to use language and express our information to others. Effective communication skills are critical to learn because they are very hard and they need time to learn. Elements in your career and personal lives. If you learn these basic communication skills, you can improve your career, you can make your personal life better because you better communicate with other your spouse and other partners and other listeners. So these communication skills are very necessary to learn in our daily life. तो जी ये स्किल्स हैं जी हमें सीखनी ज़रूरी हैं। तो बात करते हैं जी कम्युनिकेशन गोल्स की। वो क्या गोल्स हैं जो हमने लर्न करने हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है। टू गेट एक्शन, whenever you talk anyone you need to get action to ensure understanding. अगर आप किसी से बात करते हैं तो इस बात की श्योरिटी आपको होनी चाहिए कि अगले बंदे ने आपकी बात अंडरस्टैंड की है या नहीं है। To get and give, you have to get the information from the others and give the information properly and in ordered way to others. You need to inform in a better way. You have to give your information in a better way and an organized way to the others for the better understanding communication. अगर आप ये सही से नहीं कर पाते तो आप अपना पैगाम जो है सही से लिसनर को डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये जी कम्युनिकेशन गोल्स हैं जो कि है कि अपनी श्योरिटी अंडरस्टैंडिंग की, अपनी मालूमात लेना और देना और अपनी इंफॉर्मेशन को सही से कन्वे करना। मोस्ट कॉमन वेज ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या क्या तरीके हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सोसाइटी में इनको जाना जाता है। बॉडी लैंग्वेज, फर्स्ट यू हैव टू communicate with your body language, with your body expressions, with your gestures, what you want to communicate. You can make happy faces, you can make sad faces, you can move and you can express with your arms, legs and other. You can use your body language to communicate to others. Speaking skills, you have to learn the speaking skills for the communication. You have to learn to write, how to write and how to communicate your ideas with other. Visual image, you can use visual image for the better communication of your aim and your objective to the other. Beautiful people, some of the barriers comes in our life, in our communication. What are these barriers? First of all, semantic barriers come in our life that we can't understand the meaning of others. Emotional or psychological barriers, when we are disturbed, we are feeling unhappy to understand the emotional and psychological um,
feelings of others and their communication in a better way. Organization barriers in superiors and subordinates. One by one, we can elaborate these barriers. First of all, guys, we have to understand the semantic barriers. Symbols with different meaning, badly expressed message, faulty translation, unclarified assumptions, specialist language. So, when you are feeling some hurdle in your meaning, you can't deliver and can't receive the messages properly. When you express the messages badly, means they don't follow any organization and any other ordered way, तो भी आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है. अगर आप फॉल्टी ट्रांसलेशन देते हैं, यू कांट एक्सप्रेस द थिंग क्लियरली एंड करेक्टली, तो भी हर्डल्स आ जाते हैं. अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, अगर आप नज़रिया जो है उसको क्लियर नहीं कर पाते, तो भी सेमेंटिक बैरियर आ जाता है. स्पेशलिस्ट लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़ती है बाज़ औक़ात, जैसे कि स्टडी में आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दिखानी पड़ती है. इसके अलावा इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी आ जाते हैं. वो क्या क्या हैं? प्रीमेच्योर इवेल्युएशन इन अटेंशन, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, undue reliance on the written word, distrust of communication, failure to communicate. अगर आपको ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है, अगर आप इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो आप जो है अपनी बातों को अच्छे से कम्युनिकेट या अच्छे से लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से पुअर अटेंशन डेवलप होती है और मीनिंग जो है वो प्रीमेच्योर जो है अगले को डिलीवर हो जाता है और लॉस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पे वाकई हो जाती है. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स हैं. वो क्या हैं? सबसे पहले जी, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी आपको बेहतर बनानी पड़ती है ताकि आपको ये बैरियर का सामना ना करना पड़े. ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं. स्टेटस रिलेशन फॉलो करना पड़ता है. कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन अगर ये है तो आपको इसको कॉम्प्लेक्सिटी को हटा कर यहाँ पर क्लियरिटी डालनी पड़ती है ताकि ये बैरियर ना आए. इसके अलावा कुछ पर्सनल बैरियर्स होते हैं, जिसमें एक सुपीरियर है, बैरियर्स इन सुपीरियर एंड बैरियर्स इन सबऑर्डिनेट्स. What is the barrier of superior? Attitude of superior, fear of challenge of authority, lack of time, lack of awareness. When you are feeling some shy or you are feeling some fear, you can't deliver your message because of fear of authority, fear of upper class. Lack of time, you can't deliver the messages to the superior authority. Lack of awareness. यहाँ पे भी जैसे अगर आपको एग्जाम देने गए हैं और आपका कोई इंटरव्यू है या आपका कोई वाइवा है, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो अगर सुपीरियर आपके सामने है तो आप बाज़ औक़ात फियर की वजह से अपना मैसेज जो है वो सही से कन्वे नहीं कर पाते. आपको टाइम भी शॉर्ट दिया जाता है और अथॉरिटी भी मजबूत होती है और बाज़ औक़ात आपको सवाल का सही से समझ नहीं आता हमने जवाब क्या देना है. तो ये बैरियर जो है सुपीरियर की वजह से है. बैरियर्स इन सबऑर्डिनेट, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. अगर आपसे कोई जूनियर्स हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, आप चाहते नहीं हैं कि आप उनसे टाइम वेस्ट करें अपनी बातचीत कर कर, तो आप सही से कम्युनिकेट उनके साथ नहीं करते हैं, आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपके सबऑर्डिनेट जो हैं आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. ये अक्सर जो है बॉस जो हैं ऑफिस में अपने जूनियर्स के साथ या अपने मुलाजमों के साथ ये रवैया रखते हैं. तो ये थी पर्सनल बैरियर्स में ये दो चीज़ें हैं. उसके बाद कम्युनिकेशन इन्वॉल्व 3 कंपोनेंट्स. अगर बात की जाए कि वो कौन से अहम कंपोनेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं. फर्स्ट जी वर्बल मैसेजेस हैं. वर्बल मैसेजेस क्या हैं? द वर्ड्स वी यूज टू कम्युनिकेट आर कॉल्ड वर्बल मैसेजेस. Paraverbal messages. What are the paraverbal messages? How we say the words are called paraverbal messages. Non-verbal message, our body language is called non-verbal because we don't use any word in non-verbal. We just communicate with our body gestures and body language. These 3 components are used to send clear, concise messages, receive and correctly understand messages sent to us. So these 3 elements and components help in our daily life to communicate properly.
and these are the three ways. First, we use to say words, we can't use words, we don't use words, we just choose words. So these are the three ways of communication. इसके अलावा इफेक्टिव वर्बल मैसेजेस क्या होते हैं? इफेक्टिव वर्बल मैसेजेस अगर वो आर ब्रीफ एंड ऑर्गेनाइज, ये ब्रीफ होते हैं, मुख्तसर और ऑर्गेनाइज होते हैं। आर फ्री ऑफ जार्गन, इसमें किसी किस्म की वो वर्ड जार्गन होता है जो किसी को अजियत ना दे, और ऐसे वर्ड जो सोसाइटी में अच्छे नहीं समझे जाते हैं उनको जार्गन कहा जाता है। डू नॉट क्रिएट रेजिस्टेंस इन द लिसनर, ऐसी आप किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं करें जिससे लिसनिंग में मसाइल का सामना करना पड़े। तो ये जी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कुछ जो हैं वेज हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, पैरावर्बल मैसेजेस आर communication refers to the messages that we transmit through the tone, pitch and pacing of our voices. पैरावर्बल मैसेजेस दरअसल वो हैं जो हमारी टोन से, हमारी पिच से, हमारी वॉइसेस से जो है अगले को जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ही सेंटेंस हैप्पी वे में करते हो कम्युनिकेट, तो आपकी हैप्पीनेस जाहिर कर रहे हैं। अगर आप फैड अप हैं, आपकी पिच बहुत लो है, तो आपकी जो उस टाइम पे कैफियत है, तो उसको जाहिर करने के लिए जो ये मैसेजेस दिए जाते हैं, अगला बंदा आपकी टोन या वॉइस की अपर और डाउन पेसिंग को देखकर जो है डिसाइड करता है कि व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट विद देम। आर यू शोइंग द हैप्पी फीलिंग्स, आर यू शोइंग द फियर फीलिंग्स, आर यू शोइंग द सैड फीलिंग्स, आर यू showing them that you are entertaining with the communication. So these are the paraverbal messages. Basic listening skills, non-verbal and verbal. Giving full physical attention to the speaker, being aware of the speaker's non-verbal messages. You have to be clear that you have to pay the attention to the speaker and understanding what they want to say, and you have to aware with the topic. Verbal, paying attention to the words and feelings that are being expressed. In this verbal communication, you have to pay attention to the sentences, to the equal words, to the one by one feelings that the other wants to express to yourself and the others they are listening. Tips for good communication. What are the tips that you can better your communication? Maintain eye contact with the audience. You have to maintain the proper eye contact. The other should understand that you are giving attention to them. Body awareness should be necessary to communicate. Gestures and expressions are very necessary, that you should uh, give good expressions and smiling faces to the others. Convey one's thought in a good and organized way. Practice effective communication skills. These are the good uh, communication tips that we should follow in our lives for the better communication with others. Hopefully, guys, you like today's video. If you like my video, kindly subscribe my channel Study with Khola and comment in the comment section about your thoughts. And share with other learners, maybe they learn something. Thank you so much guys for joining me, for supporting me, for giving love to our channel. मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।